invite upon co-organizing secretary, Global Water Congress 2020, Dr. Dheeraj Kumar Singh, Managing Director, Grassroots Research and Creation India, Noida, and is from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and a bachelor's degree in law. He is also the founder of Fresh Foundation, a national level NGO that strives for ensuring equal opportunities for the not so privileged and underprivileged people society and for the people with different abilities. He is a pioneer in environmental clearance process and related industries as an environment consultant. He is also in India to connect members district-wise under the concept of Jan Bhumi Karm Bhumi for environment sustainability and social empowerment. Dr. Dheeraj sir, we welcome you. Thank you, madam. Good afternoon and namaskar to all the dignitaries, speakers, and eminent personalities who were the part of this 3 days Global Water Congress. My heartfelt gratitude and congratulations to all the participants who took part in various e-competitions, poster making, and other programs. Again, my personal thanks to ESDA team and especially Dr. Jitendra Nagar ji for organizing this webinar and taking valuable inputs from our honorable speakers and making it available globally from awareness point of view. My humble thanks to Sri UP Singh ji, Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India. Sri Satish Wate ji, Chairman of various committees of Expert Appraisal Committee in Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Sri Jal Guru Mahendra Modi ji is an IPS, Director General of UP Police. Sri Alok Kumar ji is Joint Commissioner, Delhi Police. Dr. Prashant Gargava ji, Member Secretary, Central Pollution Control Board. Professor P.V. Sharma ji, Vice Chancellor, Amity University, Gurgaon. Dr. G.K. Arora ji, Principal, Dr. Bhimrao Ambedkar College, Delhi University. Professor B. Subramaniam sir, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Dr. S.K. Tyagi ji, Organizing Secretary, CPCB Alumni Association. Dr. D.P. Singh ji, President, Indian Water Works Association, Mumbai, and all other guests. Having seen the 3 days journey of this webinar, we all must have taken some learning for it. For sure, these 3 days were very good in terms of knowledge dissemination. Our central government is sincerely working towards water conservation, its adequate supply under the able patronage of Sri Narendra Modi ji, and under him his able and capable brigade and leadership of Sri Gajan Singh Shekhawat ji, Sri Ratan Lal Kataria ji. With this manpower structure, we hope that something positive and productive will happen. There are still many things on which work need to be done. Sincerely, as the current situation is really alarming, and to resolve it, true and sincere efforts and complete handholding is required. We all as individuals, groups or associations can be a part of this endeavor, wherein there can be joint associations with Central Groundwater Authority, Central Water Commission, National Water Mission, IITs, IIMs, central universities, state universities, and local colleges where lots of research has already been done on this waterfront. Now the time is to bring it from lab to land as per the clarion call of our Honorable Prime Minister. The crucial time has now come to show our concerted efforts, and we can take this initiative and work proactively with an action plan to achieve this onerous goal. Being the General Secretary of Alumni Association of JNU, I strongly feel various alumni associations of schools, colleges, universities and institutions where many untapped potentials are available can be roped in and made part of this national endeavor. I as an individual am closely associated with more than 25 organizations who work towards societal benefits, policy level decision making, social outreach, environmental sustainability, etc. Being a part of RSS as well, there is an organization called Paryavaran Sanrakshan Gatividhi, where there is a think tank available to think, plan and work on ground level with the assistance of our Karyakartas throughout the country. So with the conglomeration, everything is possible and the sky is the limit. We just need to ignite the fire in ourselves and amongst the youth of India and see the results. This is another valuable suggestion which I would like to propose in front of this wonderful audience.
As of now, we are aware that each district in our country is being represented by regional officer of pollution control board, and they are competent scientists or engineers. They can play an important role in terms of capacity building of the industries which are coming in that particular district. There are currently 738 districts in our country. Each district is normally being represented by a district magistrate. Under their patronage, we can have Water Management Cell, WMC, locally within their strategically located office in one or two already rooms available. We can have two components in Water Management Center. One is dissemination and other is demonstration. Taking into account the local hydrogeological conditions, we can create one group or model which can represent both dissemination and demonstration of water management. The group that will be created will involve the RWAs, NGOs, schools, colleges, farmers associations, and other stakeholders in a district. The main purpose is to make people aware of proper capacity building. This team under the patronage of district magistrate will work on the action plan, keeping in loop all the stakeholders and guide people accordingly. Yes, sir. I'll just take 1 minute. I'm extremely sorry, sir. Yes. In this digital era, by using the medium of webinars, we can make people engaged and aware so that they can work as per the Janma Bhoomi, Karma Bhoomi concept and get things done and implemented in their respective districts from where they have come. The Janma Bhoomi, Karma Bhoomi concept focuses on the aspect that we all are born at one place, but engrossed at our Karma Bhoomi, but still keep on thinking parallelly and concomitantly about our Janma Bhoomi. Based on the concept, we can have digital district clubs, DDCs, which will be a part of Water Management Center. Likewise, capacity building on various aspects of water conservation, water pollution, wastewater treatment equipments can be done by this group under the district magistrate, and parallelly, the regulatory activities can also run and flourish. There will be an intra and inter-specific competitions within the districts from where various case studies will come out, and the best case studies can be extrapolated and easily implemented across the country. I believe that this concept has potential and can work for the benefit of society and overall nation. The national endeavor will provide a continuum and consistent model. The concept is based on think globally, but act locally, which urges people to consider the health of entire planet and to take action in their own communities and cities. I once again give my special thanks to organizing committee, all the eminent dignitaries, our regulatory officials and leaders of the nation for holding this global Congress on water, and we look forward towards the implementation of the action plans. I would like to conclude with a small quote. Being from the environment background, I can say that it takes a lot of blue to stay green. And this line in itself has a lot to say regarding the subject we are dealing with. आइए एकजुट होकर इस मिशन को आगे लेकर चलें, सभी को प्रेरित करें और जल के महत्व को समझें और समझाएं. जल ही जीवन है. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Dheeraj sir. Now, we feel honored to have with us our special guest of honor, Shri UP Singh, Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India. Shri Upendra Prasad Singh is a 1985 batch IAS officer of Odisha. Originally hailing from Bihar, he has a degree in mechanical engineering. He has served in various ministries such as Ministry of Steel, Ministry of Petroleum and Natural Gas, and also as a MD of Oil India Limited. His grace presence on the auspicious movement has made our evening glamorous. Let me take the privilege to invite esteemed special guest of honor. I request him to address the audience. Sir, we welcome you. Thank you very much. Good afternoon to all of you. And thank you very much for inviting me, and thank you very much for organizing this very important event, Global Water Congress 2020. In fact, initially I was requested to be present here in the inaugural function on 2nd, but since 2nd October we had our own a number of programs, so I couldn't attend on 2nd, but I am here and I am very happy to be here. I understand that Kavita ji is a very strict professor, so she will
and I have been given 20 minutes time, and now I find that 20 minutes time generally for talking a subject which is all pervasive subject of water is not very easy, but I will try to do it. And generally I don't have a written speech, or I don't have even jot down a few points. So basically I speak extempore, whatever comes to my mind, whatever comes to my heart actually. First of all, why this kind of a Congress is required? Because I feel that we need to speak. We need to have dialogue around water actually, for 2-3 different reasons actually. One reason is that there has to be a platform where all kinds of stakeholders comes, whether it's a bureaucrat, whether it's a technocrat, whether it's an experts, whether it's a water activist, a non-government organization. So it's very important. In fact, I remember in 2019, on 22nd March, which is a World Water Day, we started what is called a water talk. And I have been holding that water talk where I invite basically an experts, and mostly experts who has done great work in the field actually. Not so much of a technocrat and bureaucrat, but more, I would say that more of an activist kind of people who has really done some good work in the water. So every month, on third Friday from 3 p.m. to 5 p.m. Initially, we were doing physically. Now we are doing through virtually. And again, this 16th October, again, we will have the next water talk. So we have been having a water talk. Not only that, just now we were told that how important still the institutions of district magistrate is there. So every Saturday, I have from 3:30 to 5:30, at least 4 district magistrates. I have a water dialogue, as you have coffee with Karan. So something of that sort, in the sense that we have a water dialogue with the district magistrates. And every Saturday, I have been doing it for, yesterday was the 8th one actually. And not only we do it from 3:30 to 5:30, it's all live streamed. Even water talk is live streamed. And last hour water talk, more than 10,000 students of Kendriya Vidyalaya also had joined actually. And I got more than 4,000 comments from them actually. So it's necessary that we discuss about the water. But I feel that there is also need to change a bit of a discourse actually. I also, when I had maybe 4 years back, when I was speaking, when I came to this ministry, I have been here for quite some time. I came as additional secretary in the ministry. That time it was called not Ministry of Jal Shakti, it was called Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Then I worked as Director General of National Mission for Clean Ganga, which works for Namami Gange program. And then I took over as secretary way back in 2017 again, on 1st December 2017 as secretary of, that time it was called Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. And presently I am also holding additional charge of secretary as drinking water and sanitation. So now, as you know, that both the ministries have been merged into one ministry, and which is called Jal Shakti, but still it has 2 departments, and I am holding a post of secretary as far as both the departments actually. So I also used to initially start with the saying that how India is a water starved country and how our per capita water availability has become 1/4 or 1/5 than what it used to be in 1947 when India got independent. I also used to talk about the Faulkner mark, which says that if you have less than 1700 meter cube per capita per year water availability, then you go to water stressed area. And also always used to start with 2, of course, Rahim's quotes that Rahiman pani rakhiye bin pani sab soon, pani gaye na ubro, moti manus chun. And I also used to have another quote which says, one of the ex-vice president of World Bank has said that next world war would be fought over water, not over oil and gas. तो मैं भी यही बात करता था. अब मैं थोड़ा सा डिस्कोर्स को थोड़ा चेंज कर देना चाहता हूँ. अब मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ कि इंडिया जो है वो वाटर रिच कंट्री है. And I am fully convinced about that India is a water rich country. How can a country which gets on an average more than 1,000 millimeter of rainfall every year could be a water starved country? Where there are countries which get 300 or 400 millimeter rainfall, और वो इतनी बातें नहीं करते हैं. अभी इनफैक्ट अच्छा हुआ कि वो समर ऑफ 2020 इज ओवर, नहीं तो मैं जिस वर्कशॉप जिस वेबिनार जिस सेमिनार में जाता था, मुझसे लोग यही पूछते थे कि भाई ये सही है क्या कि इंडिया विल रन आउट 21 cities in India will run out of groundwater. Some people said even water. Thanks God that 2020 summer is over and none of the Indian cities have ran out of groundwater actually, or even water. And we will not run out of water.
So we don't have dearth of water. What we need to is we need to manage our water well actually. हम बात करते हैं पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी. कोई अभी मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने वाटर टॉक की बात की थी तो मैंने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लेडी आई थी, ज्योति शर्मा जी उनका नाम है, एक फोर्स एनजीओ दिल्ली में है. तो वो एक फिगर लेके आई थी, उसका था रेनफॉल पर कैपिटा इन डिफरेंट सिटीज एक्चुअली. एक शहर में कितनी बारिश होती है, उस शहर का एरिया कितना है और कितने लोग रहते हैं. तो उससे पर कैपिटा रेनफॉल तो हमें पता चला कि हम बात करते हैं जितने यूज की, उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना बारिश शहरों में होती है. मे बी दिल्ली कुड बी एन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ छोटे एरिया में बहुत पॉपुलेशन है. बट किसी शहर में चले जाइए, किसी स्टेट में चले जाइए, तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वी गेट, ठीक है, वो सब मुझे पता है, आपको भी पता है, बिकॉज हियर द पीपल आर देयर. वी आर नॉट स्पीकिंग टू अ जनरल पब्लिक. आई स्पीक टू अ पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू वाटर. बट ये हमको भी पता है कि ठीक है, ये बात होती है कि इंडिया हैज 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव 18% ऑफ पॉपुलेशन, 17% ऑफ कैटल पॉपुलेशन. हाउ वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हैज बीन गोइंग डाउन. न्यूमरेटर वही है, टोटल वाटर अवेलेबिलिटी सेम है. डिनोमिनेटर अगर 4 गुना बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन 4 गुना 5 गुना बढ़ गया, तो obviously the quotient will also become 1/4 and 1/4, or 1/4 और 1/5 एक्चुअली. ये हमें पता है, जैसे बताया गया कि भाई क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर कहीं दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो वो मुझे लगता है कि रेनफॉल पे दिख रहा है. Rainfall total has not changed much, but rainfall distribution over time and space has really becoming more and more skewed actually. तो ये बात सही है कि टोटल रेनफॉल वही है. अब पहले 3 महीने में बारिश होती थी, उसको हमें सहेज के रखना है, जो 9 महीने बाकी यूज करें. अब नंबर ऑफ रेनी डेज में भी 20 और 30 रियल रेनी डेज, बट जो 30 डेज में जो बारिश हुई वो हमारे लिए पर्याप्त है. अब उस 30 डेज पानी को हम कैसे सहेज के रखें कि हम उसको साल भर यूज कर सकें. और बोथ, मतलब ये ऑलवेज टॉक ऑफ, क्योंकि पानी केवल चिंता का विषय नहीं, जैसे हमारे मंत्री जी भी कहते हैं, पानी चिंतन और चेतना का विषय भी बनना चाहिए. तो अच्छी बात है. आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए और उनकी जो मन की बात होती है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. परहैप्स टुडे आल्सो रेडियो इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. तो वो हर महीने आपको पता है कि वो मन की बात करते हैं. बीच में मन की बात उस समय इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के चलते बंद हो गया था. तो जब मई लास्ट वीक में जब पहली उन्होंने फिर से मन की बात शुरू की, तो उसमें उन्होंने 10 से 12 मिनट तक केवल पानी की बात की. आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो YouTube पे भी वो अवेलेबल है, आप जरा एक बार सुनिएगा. उन्होंने बताया कि पानी की हमारी कैसी समृद्ध परंपरा रही है. हमारे कंट्री में तो आज के दिन में भी हजारों आपको स्टेप वेल्स मिलेंगे, जिसको आप जिस नाम से भी कहें. दिल्ली में भी है. दुख की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हमारे वाटर हेरिटेजेज हैं, जो हमारे वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया है, वहां भी जाके हम अपना शीश नहीं झुकाते हैं, ये अलग बात है. तो लेकिन हमारी बड़ी समृद्ध परंपरा रही है. ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन समथिंग व्हिच इज हैज बीन इन आवर ब्लड काइंड ऑफ. बट वही है कि जो वाटर बॉडीज और पानी के प्रति जो हमारा सम्मान था, वो कहीं ना कहीं हमने बीच में भी कहते हैं ना कि इजी अवेलेबिलिटी हो जाए. जैसे कोई बात होती है, कोई पैसा ज्यादा खर्चा करता है तो बोलते हैं, अरे पानी की तरह तुम पानी की तरह तुम पैसा बहा रहे हो. तो हमारे एक जहन में है कि भाई पानी तो बहाने की चीज है एक्चुअली, which is not true. इनफैक्ट जब वो ज्योति शर्मा जी की मैंने बात कही, तो पहले हम लोग हमेशा 3R 4R की बात करते हैं. हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो 3R की बात होती थी, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. अब धीरे धीरे वो चेंज हो गया, तो रिसाइकिल, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज की बात होने लगी. 4th हम R बताते हैं पानी के केस में, रिचार्ज है एक्चुअली. We must recharge our ground water actually, because ground water, again मैं केवल ground water पे बातें करूँ तो मैं आधा घंटा 1 घंटे बातें कर सकता हूँ कि ground water का क्या importance हमारे country में है, and how ground water is the one which has brought the green revolution in India, and not so much by dams and canals actually. तो लेकिन उन्होंने 5th R कही, that is very important. The 5th R is respect. We must bring back the respect for the water, and we must respect our water bodies actually. तो ये डिस्कोर्स जो है वो डिस्कोर्स चेंज होना चाहिए थोड़ा. तीसरी चीज क्यों जरूरी है पानी पे बात करने की, कि बिकॉज हमारी समझ, मुझे ऐसा लगता है हमारी भी गलती है. हो सकता है कि सरकार ने भी जितना उन्होंने कहा कि अभी डिसेमिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन हमें करना चाहिए, शायद उतना हमने नहीं किया. एक बच्चे से आप पूछते हैं कि भाई पानी कहाँ से आता है, तो बच्चा बोलता है कि पानी तो टैप से आता है.
He understands only tap. He doesn't understand aquifers. We have never tried to teach him what is an aquifer is basically actually. तो अगर हमने उसको समझाया नहीं, आप अभी बात हो रही थी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, मैं एक थोड़ा सा मैं विषयांतर भी कर रहा हूं, बट क्यों बता रहा हूं कि हमारे पानी और नदियों के बारे में कितनी हमारी समझ कम है। मैं एक बात कर रहा था, एक बार ऐसे ही हम करते रहते हैं, बीच में जो सफाई अभियान यमुना पे था तो वहाँ पे एक फंक्शन हुआ था, उसमें DTU के एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी आए थे। ही ओनली केप्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन दिल्ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप एक एक बूंद दिल्ली का आप ट्रीट कर लीजिए, आप यमुना को नहीं ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यमुना की प्रॉब्लम वो नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में पानी, बॉडी में खून की जरूरत है, नदियों में पानी की जरूरत है। River is that which flows. Something which doesn't flow is not a river. So for 8 months in Delhi, Yamuna stretch of Delhi doesn't flow. हम वजीराबाद के नीचे तो कुछ पानी आने ही नहीं देते हैं, तो फिर वो चाहे आप ट्रीटेड करें अनट्रीटेड करें, वो तो सीवेज का पानी ही जाएगा ना। उसको डाइल्यूट करने के लिए वेयर इज द वाटर? विच सोल्यूशन टू पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन, टू सम एक्सटेंट दैट्स ट्रू। तो एक तो पानी की समझ होनी चाहिए। जो हमारे लोग हैं वो उसकी बात ही नहीं करते। हम नदियों में हाउ टू ब्रिंग बैक वाटर इनटू द रिवर, उसकी हम बात ही नहीं करते हैं, या बात भी हम करते हैं तो केवल ठीक है आस्था का विषय भी नदी हो सकती है, तो हम केवल बड़ी बड़ी नदियों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ छोटी नदियों की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? जो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हाट इज अ बिग रिवर? बिग रिवर इज नथिंग बट द कन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉल रिवर्स एक्चुअली। तो हमको करना है तो ठीक करना होगा। हेलो सर, बाय मिस्टेक वो म्यूट हो गया सर, प्लीज। मैं भी म्यूट हो गया सर। तो अगर हमें गंगा को ठीक रखना है तो हमें यमुना को ठीक रखना पड़ेगा। यमुना को ठीक रखना है तो यमुना की सहायक नदी हिंडन है, हिंडन पे हमें ध्यान देना होगा। हिंडन को ठीक रखना है तो उसकी काली वेस्ट और कृष्णी जैसी छोटी नदियां हैं, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एक इसलिए भी बहुत जरूरी है बातें करना पानी के बारे में, नदियों के बारे में। मैं तो जब DG NMCG था तो मैं यही कहता था कि प्रॉब्लम ऑफ रिवर रिजुविनेशन, गंगा रिजुविनेशन इज लाइक अ 7 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट एक्चुअली। तो जो आदमी जो पोर्शन देखता है हाथी का, उसको लगता है हाथी वैसा ही है। अगर कान पकड़ता है तो उसको लगता है हाथी जो है सूप जैसा है, जो पैर पकड़ता है तो उसको लगता है कि हाथी जो है वो पेड़ जैसा है। तो इसीलिए भी एक जरूरी है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज उस पर बात हो रही है। एक बात जो हमने कही, अब इस पे तो इतनी बातें पानी पे हो सकती है, और हमारे दोनों जो विभाग मेरे अंदर है उस पर मैं बहुत बातें कर सकता हूँ। जल जीवन मिशन के बारे में बात कर सकता हूँ, स्वच्छ SBM जो स्वच्छ भारत मिशन 2 के बारे में बात कर सकता हूँ, गंगा रिजुविनेशन के बारे में बात कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें करने की चीज है, और बहुत सारे पॉलिसी, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बात करने की चीज है। समय कम है तो उनमें ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी का अपना रोल है, लेकिन मैं बियॉन्ड ज्यादा केवल टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करता हूं। बहुत जो सिंपल चीजें हैं वो हम आज के दिन में नहीं कर रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन प्रोफेसर शर्मा वॉज टॉकिंग अबाउट MIT यूनिवर्सिटी, और वही बात मैं आज के दिन में करता हूं। हम तो हमारा एक कैंपेन अभी चल रहा है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और एक नई जागृति आई, हर जगह पानी पे बात होने लगी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी। देखिए इस कंट्री में मेरा अपना मानना है कि 3 ही लोगों की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है, PM, CM और DM। तो मेरा वही है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा तो सबने सुना। जहां पे चीफ मिनिस्टर ने अपना प्रोग्राम उसको बना लिया प्रायोरिटी प्रोग्राम, उस स्टेट में सुना जा रहा है, चाहे वह जल जीवन हरियाली मिशन बिहार का क्यों ना हो। और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रायोरिटी में आ गई तो मेरा मानना है कि पानी की समस्या लोकलाइज समस्या है, और उसका सोल्यूशन भी हम लोकलाइज मैनर में प्राप्त कर सकते हैं एक्चुअली। तो जब प्रधानमंत्री ने बात की तो हमने भी उसको थोड़ा इनकैश किया उस बात को। जब जागृति पैदा हुई तो हमने पिछले साल जल शक्ति अभियान किया। जल शक्ति अभियान वॉज नॉट अ प्रोग्राम, it was basically to create a buzz around water conservation mainly actually, and we did succeed। इस बार भी हमारा 15 अप्रैल से करने का था, जो हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। बट अभी हमारा एक चल रहा है कैंपेन कॉल कैच द रेन। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, या हम कहते हैं कैच द रेन एंड होल्ड इट टू। अब जो बात हो रही थी मैं वही कहता हूँ, कहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है बारिश के पानी को सहेजने की? एवरीवेयर। आज शहरों में बात होती है, पिछली बार आपको याद होगा पटना में फ्लड आ गया था। अब कितने लोगों को पता है पटना में फ्लड इसलिए नहीं आया था कि वो गंगा का पानी पटना में घुस गया था।
बात तो ये थी कि गंगा का पानी कहीं बाहर नहीं जा पा रहा, सॉरी, बारिश का पानी पटना से बाहर नहीं जा पा रहा था, गंगा तो नीचे बह रही थी। अब हमने क्या किया है, अब हमारा तो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कंक्रीटाइजेशन। तो एवरीवेयर बेसिकली जो पानी बारिश होती थी शहरों में, वो पानी कहाँ जाता था, पानी तो नीचे परकोलेट होगा, पानी तो नीचे पेनिट्रेट करेगा। अगर हमने वो सब जगह कंक्रीटिंग कर दी तो पानी ना तो नीचे जा रहा है, फिर पानी कहाँ जाता, पानी हमारे वाटर बॉडीज में जाता। कुछ चैनल्स बने थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बने थे, उससे होके पानी जाता हमारे वाटर बॉडीज में। हमने वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया। जितने शहर थे दे वर ऑल नोन, सम ऑफ द सिटीज वर नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, ऐसा नहीं था कि वाटर बॉडीज नहीं थे। केवल रूरल एरियाज में वाटर बॉडीज थे ऐसा नहीं, शहरों में भी वाटर बॉडीज थे। या तो हमने चैनल को भी ब्लॉक कर दिया, इंक्रोच कर दिया, वाटर बॉडीज को हमने रिसेप्टेकल बना दिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, तो वहां भी पानी नहीं जाता है, तो फिर पानी तो घरों में ही घुसेगा ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पानी, वैसे ही बात जैसे हम शहरों की बात की, नदियों का देखिए, नॉट मेनी पीपल टॉक दीज डेज ऑफ फ्लड प्लेन्स। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि फ्लड प्लेन्स क्यों इतने जरूरी हैं। अब हमने क्या किया है भाई, हमने फ्लड प्लेन्स पे भी, सरकारी भी बेसरकारी भी, हर तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाए फ्लड प्लेन्स पे। फ्लड प्लेन्स केवल यही नहीं, रूम फॉर द रिवर ही प्रोवाइड नहीं करता था, फ्लड प्लेन्स वाज वन वेयर लॉट ऑफ वाटर यूज्ड टू गेट स्टोर्ड एक्चुअली। और वही बात जो ज्ञान की बात में पहले कह रहा हूं भाई, नदियों में पानी कहां से आता है सीजन में? 4 महीने तो बरसात का पानी रहता है, बाकी 8 महीने जो नदियों में पानी आता है, जो लीन सीजन फ्लो होता है, वो तो वही पानी जो एक्यूफर में भरे होते थे, फ्लड प्लेन्स में भरे होते थे, वही पानी वापस आता है नदी में। तो हमने एक्यूफर को ऐसा सुखा दिया, एक्यूफर से इतना ज्यादा पानी को ओवर एक्सट्रैक्ट कर लिया कि उसके बाद पानी बचता ही नहीं वापस नदियों में आने का। तो 2 चीजें बड़ी जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि जो शुरू में मैंने कहा कि वाई ऐसे कि इंडिया इज अ वाटर रिच, बिकॉज हमारे पास, हमारी स्ट्रेंथ आज के दिन में उल्टा है, इनएफिशिएंसी है। वी आर वेरी इनएफिशिएंट इन यूज ऑफ वाटर, वेदर इट इज फॉर द एग्रीकल्चर। 89% of the water in India goes to agriculture, and water use efficiency there is between 35 to 40%. That means we use more than 2 and 2.5 times more water than is needed actually. You go to industry, you see कि भाई पर कैपिटा कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, पर कैपिटा स्टील करने के लिए, पर कैपिटा पेपर बनाने के लिए, सॉरी पर टन, नॉट पर कैपिटा, पर यूनिट कितना पानी यूज करते हैं? हाउ डज इट कंपेयर वेस्ट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअली, और इवन बेस्ट इन द इंडिया? तो हमारी तो इनएफिशिएंसी है, जिसको अगर हम 10% 20% भी इफिशिएंट बना दें तो वी विल गेट अ लॉट ऑफ वाटर एक्चुअली। दूसरी बात, सब लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन ऐसे बढ़ेगा तो उसी हिसाब से वाटर की डिमांड बढ़ेगी। क्यों उतनी डिमांड बढ़नी चाहिए भाई? अगर हम इफिशिएंट होते हैं, अगर आज हमारे पास 40% नॉन रेवेन्यू वाटर है, तो अगर हम शहरों में भी पानी का अरेंजमेंट ठीक कर लें, मीटरिंग ठीक हो जाए, लीकेज नहीं हो, लोग पानी का हम प्रॉपर बिलिंग की जाए, पैसे किए जाए, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यूएस में तो पिछले 20 सालों में पानी की डिमांड नहीं बढ़ी है। अभी मैं वो ऐसे ही वेबिनार था जहां मेरे साथ डेनमार्क के एम्बेसडर थे, उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में उनकी पानी की डिमांड आधी हो गई है। उनके यहाँ नॉन रेवेन्यू वाटर फॉर होल ऑफ डेनमार्क की जस्ट 6%, हम इंडिया में 40% और 50% की बात करते हैं। तो एक तरफ तो हमारे पास बेसिकली बाय बीइंग एफिशिएंट वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर। दूसरी बात जो मैं बात ही कर रहा था अभी पहले, थोड़ा सा मैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करूं, मैं अपने प्रोग्राम्स की बात नहीं करूंगा आज क्योंकि समय इतना नहीं है, बट जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट, हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट में केवल बड़े बड़े डैम्स एंड कैनाल्स की बात करते हैं। This is not the forum where I should say whether dams are good, dams are bad. You know, there are 2 group of schools. Basically, the one say dam the dams. The other group is says कि नहीं भाई, बिना बड़े स्टोरेज से हमारा कुछ नहीं हो सकता, वाटर सिक्योरिटी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि नहीं, ठीक है डैम अपना होते रहे, जो भी हो उसका बहुत टाइम, land acquisition, resettlement rehabilitation, forest clearance, wildlife clearance, a lot of things are there. हम कह रहे हैं हम छोटे छोटे क्यों नहीं, मतलब ऐसा कोई थोड़ी है कि बड़े 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 उसी में केवल पानी स्टोर हो सकता है। सबसे बड़ा स्टोरेज हमारा क्या है? हमारे मंत्री जी एक बार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो जो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है, तो लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा स्टोरेज जो है, किसी ने कहा हीराकुद डैम, किसी ने कहा सरदार सरोवर डैम, किसी ने कहा भाखड़ा डैम, किसी ने कहा नागार्जुन सागर डैम। तब हमारे मंत्री जी ने कहा कि नहीं भाई, जितने डैम्स हैं उन सबका स्टोरेज मिला के उससे ज्यादा तो जमीन के अंदर हमारा स्टोरेज है। अंडरग्राउंड स्टोरेज इज बिगर देन ऑल द स्टोरेजेस वी हैव क्रिएटेड।
तो फिर हम उसी में क्यों ना स्टोर करें एक्चुअली। उसके लिए तो ना तो लैंड एक्विजिशन करने की जरूरत है, ना तो उसके लिए आरएनआर की कोई समस्या है, ना तो वाइल्ड लाइफ की समस्या है, ना तो एनवायरमेंट क्लियरेंस की समस्या है। तो भाई कम से कम पानी को जमीन के अंदर तो हम जाने दें। पृथ्वी माँ का हम अगर पेट भरेंगे तो पृथ्वी माँ को हम पानी पिलाएंगे उनको, तो वो हमें भी पानी पिलाएंगे। सिंपल है। मैं तो बहुत सिंपल भाषा में बात करता हूँ समझाने के लिए कि भाई यही है। हमने तो पृथ्वी पे हजारों लाखों करोड़ों छेद कर दिए, उन छेद से हम पानी तो निकाल रहे हैं, उन्हीं छेद को कम से कम पानी भरने के लिए भी यूज करें। आज के दिन में आपने बोरवेल बनाया, जो बोरवेल फेल हो गया उस बोरवेल को पानी के अंदर भी तो जाने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है। सो कहाँ नहीं है, जैसे आपने भी बहुत कहा, मैं आजकल उसी पे लगा हुआ हूँ कि चाहे वो 2-4 संस्था का ही नाम लूंगा, चाहे आप देख लीजिए कि जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं सबके पास 10-10 हजार हेक्टेयर्स की जमीन है, ह्यूज बिल्टअप एरिया है, फैक्ट्रीज हैं। आप देख लीजिए कि कैंटोनमेंट एरियाज को देख लीजिए, आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, आप स्टेडियम्स देख लीजिए। एक बार हुआ कि चेन्नई आईपीएल में स्टेडियम जो है वो नहीं होगी, वहां पे मैच नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि स्टेडियम में हम इतना पानी बचा सकते हैं, केवल उसको पानी को चाहे वो स्टेडियम के ऊपर गिर रहा हो, मैदान में गिर रहा हो, उस पानी को अगर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए करें तो जितनी पानी की जरूरत है वो मिट सकती है एक्चुअली। वैसे ही आपने भी बात कही, अच्छी सी बात कही, जितने हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास भी बहुत जमीन है। मैं भी एक आईआईटी में पढ़ा हूँ, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर एक्चुअली, फिर आई डिड माय बीटेक एंड एमटेक। ह्यूज एरियाज है, कोई कारण नहीं है, ह्यूज एरिया दोनों है, ओपन एरिया भी है, बिल्टअप एरिया भी है। तो कोई कारण नहीं है कि सारे हमारे जितने आपने कहा मैंडेट करने की, वो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन बिना मैंडेट किए हुए भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम जितने हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो डीटीयू हो, चाहे वो एनआईएसटी, वो एनएसआईटी हो, या आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग भी यहाँ बैठे हैं, कोई कारण नहीं है कि व्हाई इट कांट बी। जैसे आपने कहा आपकी तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टाइप की आपकी यूनिवर्सिटी है। मैं जिस कॉलोनी में दिल्ली में रहता हूँ ये भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है। हम भी यहाँ का कोई सीवेज जो है वो बाहर नहीं जाने देते हैं, हम भी यहाँ का पानी और हमारा पानी का लेवल बढ़ भी रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब ऐसा आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो यही सब कह रहा हूँ कि ये सब होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं मानता हूँ। मैंने जो अभी सबसे लास्ट में बताया कि मैं हर सप्ताह जो 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठता हूँ, ऑलरेडी 8 सप्ताह बैठ चुका हूँ और ये चलता रहेगा। ऐसा भी नहीं है क्योंकि 738 जिले हैं, मेरा तो ये है कि पता नहीं 738 हम पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, क्योंकि लेकिन 50 वीक में, एक साल में कम से कम मैं 200 लोगों तक, तो 200 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक मैं पहुंचूंगा या म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुंचूंगा। उसका कारण है आई जस्ट वांट दैट वाटर शुड बिकम अ प्रायोरिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट कोरोना होने से पहले मैं 3 जगह गया था। पहले मैं एक सहारनपुर गया, वहां मैंने 3 डीएम्स के साथ और कमिश्नर के साथ और पूरे वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आधे दिन का एक रखा इसी पे, पानी पे और नदियों पे। उसके बाद मैं मेरठ गया, मेरठ में 6 डीएम, मेरठ कमिश्नर। मैं गया बांदा में, वो जो वहाँ के चित्रकूट के कमिश्नर और बांदा के जो चित्रकूट कमिश्नरी के 4 जिले, उनसे बात की। उसके बाद मेरा अगला था झांसी जाने का था, बाकी जगहों का जाने का था, लेकिन 15 मार्च के बाद अब जैसा जानते हैं नहीं जाना हो पाया। तो अब मैं करता हूँ, और इसमें हर बार ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि वो बताएं, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज के दिन में मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था 7 साल की नौकरी में, मुझे नहीं पता था एक्यूफर क्या होता है, मैं नहीं जानता था कन्वर्जेंस क्या होता है, मैं नहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता था। लेकिन आज यंग ऑफिसर्स, आई वुड से, ऐसा नहीं है कि हमेशा बोलते हैं कि भाई हम लोग थे तो ऐसा करते थे, आज के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई जिला वर्चुअली नहीं है जहां पानी के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम हो रहा है। कल कर्नूल के डीएम थे, आप लोगों को पता होगा, उसके पहले वो अनंतपुर में डीएम था। अनंतपुर एंड कर्नूल, ये जो है, ये दीज आर द 2 वो डिस्ट्रिक्ट जो रायलसीमा रीजन, कंट्री में जब बात होती है पानी के प्रॉब्लम की तो बात होती है या तो रायलसीमा की बात होती है, विदर्भा मराठवाड़ा की बात होती है, वेस्टर्न राजस्थान और पार्ट ऑफ गुजरात की बात होती है, नहीं तो बुंदेलखंड की बात होती है कि भाई ये सब सबसे मुश्किल इलाके हैं। उसने पिछली बार ही सेज कि माय डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 1000 फार्म पॉन्ड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा नहीं है। अभी एक वडोदरा की भी शालिनी अग्रवाल डीएम है, वो आई थी कुछ दिन पहले हमारे इसी प्रोग्राम में। वो बताई कि 1000 स्कूल्स उनके डिस्ट्रिक्ट में हैं और एक स्कूल के ऊपर 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑल ऑफ देम हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
इसलिए नहीं कि कितना पानी एक तो इकट्ठा हो रहा है तो अच्छी बात है, बट 1000 स्कूल में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, इट वुड बी अ ग्रेट एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन देयर। उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्यों हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ये पानी में जो हम डाल रहे हैं नीचे जमीन में पानी कहाँ जाता है, क्यों यहाँ पे उसको साफ करने की जरूरत है, कैसे एक्यूफर पॉल्यूट ना हो। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। वैसे ही मैं एक दिन हमारे साथ थे उधम सिंह नगर के डीएम एक्चुअली, तो उन्होंने बताया कि कैसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स देखे। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में 1200 उनके यहाँ टैंक्स और पॉन्ड्स होते थे। उन 1200 में से 600 देखा गया कि जब फील्ड वेरिफिकेशन किया गया तो 600 थे ही नहीं। तो क्या था भाई, वो इनक्रोच्ड अपॉन थे। उसमें से आधे थे वो इनक्रोच थे टेम्पोररी, आधे थे परमानेंटली। हमने कहा परमानेंटली छोड़ दो यार, अभी घर मत तोड़ो, ग्राम पंचायत घर मत तोड़ो, रोड मत तोड़ो। 300 जो और जो इनक्रोच्ड अपॉन है उनको लो, और 600 जो हैं अभी लेकिन वो सिल्टेड अप हो गए हैं या उसमें जलकुंभी भर गया है या जो भी है उसको करो। और उन्होंने सारा किया। एक तो उन्होंने MGNREGA जो मनरेगा प्रोग्राम होता है उसके अंदर किया। उसके अलावा उन्होंने एक माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक तो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें तो बड़े बड़े लोग आते हैं। माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो जिले में छोटे छोटे लोग हैं, कोई एक क्रशर यूनिट वाला है, उसको कहा गया कि भाई तुम 5 दिन के लिए JCB दोगे, हायर करके 5 दिन के लिए एक JCB मशीन दोगे, तेल दोगे, और उसके बेसिस पे जो है वो हमारा। तो इस ढंग से करके उन्होंने अपने सारे कुआं जिंदा कर दिया। मैं बांदा का एग्जाम्पल अभी बांदा बोल रहा था, वहां एक DM थे हीरालाल जी। मैंने उनका एक बार वीडियो देखा था, उस वीडियो का नाम था कुआं तालाब जियाओ अभियान। कुआं तालाब को जिंदा करने की बात मुझे अच्छा लगा। मैं गांव से आता हूं, मैं तो भी कुएं से ही पानी निकालता था, उसी से नहाता था, सब कुछ करता था। तो मुझे लगा कि बड़ी अच्छी बात है। जब लोग खाली केवल और नल और पाइप और टैप की बात करते हैं तो कोई आदमी है जो कुएं तालाबों को जिंदा करने की बात करता है। तो आई सेड कि भाई, मैंने उनको फोन किया, DM सर मोर बिजी देन मी, तो मैंने डरते डरते फोन किया कि भाई, तो उन्होंने बड़े खुश हुए। वो बोले नहीं सर आप हमारे यहाँ देखने आइए। फिर मैं एक दिन गया उनके यहाँ, 2 बार वैसे मैं गया हूँ। पहली बार गया तो वहाँ पे एक 7000 कुओं पे 5-5 महिलाएं जो हैं वो दीप लेके, अर्दन लैंप लेके शाम को उन्होंने दीप दान किया। द होल आइडिया वाज कि 7000 कुओं पे 5-5 महिलाएं दीप दान कर रही हैं। दिस इज गेटिंग द रिस्पेक्ट बैक टू द वाटर एक्चुअली। सो दीज आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स आई हैव सेड, आई डोंट हैव एनफ टाइम, बट ऐसा नहीं है, काफी कुछ काम हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा, प्रोफेसर PB शर्मा जी ने बताया कि कैसे उनके यहाँ सब कुछ, मतलब जो पानी, जो बारिश का पानी होता है उसको भी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करते हैं। साथ में वो कोई भी वो रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर की बात हम करते हैं, ठीक है, आज के दिन उसमें भी काफी काम हो रहा है। बहुत सारे स्टेट ने भी पॉलिसी बना रही है, हम नेशनल पॉलिसी भी ला रहे हैं। बिकॉज पॉलिसी लाने से, जो आपने कहा, एक तो अपने से कोई करे, दूसरी चीज होती है पॉलिसी का एडवांटेज होता है यू मैंडेट सर्टेन थिंग्स एंड यू इंसेंटिवाइज सर्टेन थिंग्स। तो वो भी जरूरी है। कुछ लोग तो खुद ही करेंगे, बट कई कई जगहों पे मैंडेट करना और इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम ला रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, बेंगलोर में आधा बेंगलोर का जो ट्रीटेड सीवेज है, दैट इज यूजफुल फॉर द फार्मर्स इन नेबरिंग 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स। वो पानी जाता है, अच्छे से ट्रीट करके जाता है, वो तालाबों में जाता है। वहाँ टैंक्स की बड़ी अच्छी सिस्टम होती है ना, आपको पता होगा साउथ में देयर आर कैस्केड्स ऑफ टैंक्स एक्चुअली। उसमें से डायरेक्टली फार्मर नहीं लेता है, वो भी बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने को होता है, और आदमी फिर ग्राउंड वाटर से वहाँ पानी लेता है। उस पर भी काफी कुछ काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल का आंदोलन एक जन का आंदोलन बने, और काफी हद तक आई एम वेरी होपफुल दैट लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन एक्चुअली। हम तो जल जीवन मिशन की बात सब लोग करते हैं। जल जीवन मिशन बहुत बड़ा सरकार का मिशन है, आपको भी पता है। उसमें है कि हर घर को नल से जल दिया जाएगा। बट मैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानता हूँ, उसके बहुत सारी विशेषताएं कि भाई सबसे उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोर्स सस्टेनेबिलिटी। जब तक हमारे पास रिलायबल सोर्स नहीं होगा तो हमारे पास टैप होगा, लेकिन टैप में पानी नहीं होगा। तो आई एम सेइंग कि भाई वहां भी सबसे ज्यादा जिस चीज को हमें महत्व देना चाहिए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर को लगा दीजिए, वो पाइप भी ले कर देगा, वो ऊपर टैंक भी बना देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन जो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर। एंड बिकॉज यहाँ पे हम केवल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात भी कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शनलिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहले मैंने शुरू में कहा था, रिवर रिजुविनेशन, वो मेरा एक पेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि गंगा पे मैंने काम किया था। और मैं अभी भी मानता हूं कि केवल बातें जो है, ठीक है, आप STP, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, CTP सबकी बात करें, उसमें भी क्या होता था, मैं एक छोटा सा चीज आपको बता के अपनी बात खत्म करूंगा।
मैं एक हमेशा कोट करता हूं कि इन इंडिया वी पे फॉर कंस्ट्रक्शन, वी डोंट पे फॉर परफॉर्मेंस। ये मैंने कहाँ से सीखा था? एक बार मैं 3-4 साल पहले एक वर्ल्ड बैंक के एक वर्कशॉप में गया था, मैं था वॉशिंगटन डीसी में। तो देयर वाज अ जेंटलमैन हु वाज फ्रॉम ब्राजील एक्चुअली। तो ही वाज टॉकिंग ऑफ हिज कंट्री। ही वाज सेइंग इन आवर कंट्री वी पे फॉर कंस्ट्रक्शन, वी डू नॉट पे फॉर परफॉर्मेंस। मुझे लगा कि भाई सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बिल्कुल हमारे कंट्री में भी बिल्कुल यही बात है। हम तो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे चलता है उसकी परवाह तो हम करते नहीं हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट आज के दिन में देख लीजिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स विल टॉक ऑफ ओनली दैट हाउ मच सीवेज अप्रॉक्सीमेटली इज जनरेटेड फ्रॉम टाउन्स or cities in this country, and what is the capacity we have created. Every time the word says how much capacity we have created. If you ask someone how much actually you are treating, that kind of data you will not get it. हमने एक छोटा सा जैसे एक्सपेरिमेंट किया है, उससे कई प्लांट अभी बन भी गए हैं। हाइब्रिड एन्युटी मोड, हमने क्या किया हाइब्रिड एन्युटी मोड में? हमने कहा कि एक तो 15 साल का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो वी प्रोजेक्टाइज 15 years O&M। फिर जो बंदा कॉन्ट्रैक्टर, उसको हम डेवलपर कहें, कंसेशनर कहें, उसको हमने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें 40% ही पैसा दूंगा, बाकी तुम पैसा 60% अपना फाइनेंशियल टाई अप करके लगाओ। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई चैरिटी हमारे लिए थोड़े कर रहा है कि वो 60% पैसा वो खुद लगाएगा। वो लाया लोन लेके, हमने कहा ठीक है मैं उस पर तुमको 15%, 10%, 12% इंटरेस्ट भी दूंगा, मैं तुमने जो O&M कोट किया उसका भी पैसा दूंगा, प्रोवाइडेड 15 साल में दूंगा, हर साल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा, लेकिन ये शर्त है कि तुम मीट करोगे डिजाइन स्टैंडर्ड्स को। तो हिज परफॉर्मेंस, हिज पेमेंट इज लिंक टू द परफॉर्मेंस। तो इफ यू डोंट लिंक द पेमेंट टू द परफॉर्मेंस, फिर तो वो अपना बनाएगा, वो चला गया कहाँ, अच्छा क्वालिटी बनाया, खराब क्वालिटी बनाया, उसको तो चलाना नहीं है, उसके वो तो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। Not only that, we went one step further. We say one city, one operator. जिस शहर में देखिए 5-6 अलग अलग संस्थाएं, यूपी जल निगम से बात करें, बोलते नहीं सर ये तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात करते हैं, नहीं सर वो तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है प्लांट। तो अब हमने यही किया है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे शहरों में हम एक कंसेप्ट नया लाए हैं, वन सिटी वन ऑपरेटर। जो पहले का प्लांट था, नया प्लांट है, वो एक आदमी ही चलाएगा। So anyway, there are a lot of things which we have been doing and a lot need to be done actually. लेकिन मेरा ये मानना है कि पानी किसी urgency है, but it's not an emergency. Let us not create a panic actually. This is a country where we have lots of water. If we manage them well, there is no reason why we will face the kinds of doomsday which a lot of people predict actually. वैसे तो बहुत सारी बातें थी, जैसे अब पॉलिसीज की बातें थी, क्यों पंजाब हरियाणा में आज धान की खेती होती है जो पहले नहीं होती थी, इस टाइप बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं अभी इंटरप्शन। हाँ, सो एक्सक्यूज मी UP sir, so sorry for the interruption. No, I didn't want you to come. I was just saying that now I'm not going to deal with all of them. So thank you very much for giving me an opportunity to put some of my thoughts actually, and thank you very much for organizing this, and I'm sure you will keep organizing and keep doing the good work, the kind of work which Professor Sharma has done in his university or in his place. I request a lot of people from different universities and all are there, so I would request all of them to do that. I would be happy to come to your institute, or otherwise whenever you organize any kind of seminars, workshop, you can invite me. I will always find time for you and put forth my views. Thank you very much. Thank you so much. Sir, we are very